مسیح خداوند یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مسز پاسٹر افتخار، میرا تعلق سالم گوسپل پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں گریس ٹی وی نیٹ ورک کے لیے، شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر جی کے لیے، جن کے توسط سے آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور بہت سے ایماندار کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کے کلام کی خدمت کو پیش کرتے ہیں اور سننے والے باعث برکت ہیں۔ دعا کرتے ہیں اس نیٹ ورک کے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے کہ خداوند انہیں بلیس کرے، انہیں برکت دے اور زیادہ اپنے آپ میں بڑھنے کا فضل دے، اور آج کے کلام کے لیے کہ مسیح خداوند یسوع کے نام سے آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، کلام مقدس میں سے آج جو چیز ہم سیکھنے کو ہے، روح القدس جو بات آج ہمیں سکھانے کو ہے، وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا ہر انسان، ہر ایماندار کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ جس طرح سے بغیر آکسیجن کے زندہ رہنا ناممکن ہے، اسی طرح سے دعا کے بغیر کسی بھی ایماندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کہ دعا کی کیا طاقت ہے اور دعا ہمارے لیے کیا کیا کر سکتی ہے، اور ایک ایماندار دعا کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ناممکنات کو کس طرح سے ممکن کر سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے، نئے اہدامہ میں سے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 41ویں آیت سے 45ویں آیت تک پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پہ سرنگوں ہو کر اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اخیب نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ میرے عزیزوں، پہلی بات جو روح القدس ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے ناممکنات کام ممکن ہوتے ہیں۔ اخیب بادشاہ کے دور میں اس وقت تو بہت زیادہ کال تھا، اور کال کے سبب سے، بارش نہ ہونے کے سبب سے لوگ جو تھے، وہاں کی قوم جو تھی، وہ بڑے دکھ اور مصیبت میں تھی، کیونکہ لوگ اناج کے لیے پریشان تھے، لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان تھے، وہاں پہ دکھ تکلیف کا عالم تھا، وہاں پہ نا امیدی کا عالم تھا، اور کسی کو ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ اب بارش برسے گی اور خدا کا آسمان ان کے لیے کھلے گا اور ان کے لیے زندگی جاری ہوگی۔ لیکن جب ایک ایماندار دعا کے لیے کھڑا ہو جائے، راکھا برسا ینتھا ربی ایسے، جب ایک ایماندار دعا کے لیے کھڑا ہو جائے تو ناممکنات کام ممکن ہو جاتے ہیں، اور وہ ایماندار تھا ایلیا۔ ایلیا جب اپنے دستے دعا بلند کرتا ہے ایمان کے ساتھ، لکھا ہے کہ وہ سرنگوں ہو گیا، اس نے ادھر ادھر دنیا کی فکر نہیں کی، اس نے اپنا دھیان اور اپنا فوکس اپنے زندہ خدا کی طرف کر لیا، اور اپنا اور خدا کے ساتھ ایک رابطہ دعا کے ذریعہ بنا دیا، اور نا امیدی میں اس کے لیے امید جاری ہو گئی۔ لکھا ہے کہ 7ویں بار جب جہازی جاتا اور کہتا کہ ہاتھ کے برابر بادل ہے، اور ایلیا ایمان پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا، جا اخیب سے کہہ کہ اب زور کی بارش کی آواز ہے۔ اب تک بارش کی آواز سنائی نہیں دی تھی، اب تک صرف جو بادل تھا وہ ایک ہاتھ کے جتنا تھا، لیکن ایمان پہ کھڑا رہ کر دعا کرنے والے جو جتنی بھی چھانے ہیں، ایمان پہ کھڑے رہنے والوں کے لیے زوردار بارش برستی ہے۔ ہاللیلویا! ایمان پہ کھڑے رہنے والوں کے لیے ناممکنات ممکن ہوتے ہیں۔ ایمان پہ کھڑے رہنے والوں کے لیے کال نہیں رہتے، بلکہ وہ ان کے لیے زندگی، امید اور بنجر جو ہے وہ ان کے لیے شادابیاں بن جاتی ہیں۔ تو روح کو ساتھ جو بات ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعا جو ایمان سے کی جائے، وہ دعا جس میں ہم اڑے اور کھڑے رہ جائیں، وہ دعا جو کامل ہو۔
सात का अदद कामिलियत को जाहिर कर रहा है, वो दुआ जो कामिल हो, और कामिल दुआ वो है मेरे अजीज़ों जो ईमान से की जाए। और एलिया की दुआ ईमान से की गई थी। एलिया की दुआ में उसका राब्ता, उसका ध्यान, उसका फोकस सिर्फ उसका ज़िंदा खुदा था। ना वो हालात की तरफ नज़र देख रहा था, ना वो वाक़ियात की तरफ नज़र देख रहा था, वो सिर्फ अपने खुदा की तरफ नज़र कर रहा था। और जो दुआ ईमान से की जाए वो नामुमकिनात को मुमकिन करती है और खुदा का आसमान हमारे लिए खोलती है। हालेलुया। आइए, दूसरी बात जो रुकुस हमें सिखाना चाह रहा है वो ये है कि वो दुआ जो ईमान से कर दी जाए, उस दुआ से क्या होता है, दुआ हमारे लिए और क्या करती है। दुआ हमारे लिए कायनात का निज़ाम बदल देती है, दुआ हमारे लिए खुदा के इरादे बदल देती है। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे, सलातीन की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 10वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। आमीन। ये रेफरेंस जो मैंने आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से ये खूबसूरत बात जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये मैंने आपके सामने सलातीन की दूसरी किताब से पढ़ी, और इसमें हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र है। हिजकिय्याह को जब खुदा ने उसके पास पैगाम पहुंच गया कि अब उसकी मौत करीब है, अब वो ऐसा बीमार पड़ चुका है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन हिजकिय्याह ने जब ईमान से दुआ की तो खुदा का इरादा उसके लिए बदल गया। वो उसके लिए जो मौत ठहर चुकी थी वो ज़िंदगी में तब्दील हो गई। उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने से कहा कि ना सिर्फ तू उम्र पाएगा बल्कि मैं तेरी उम्र को 15 बरस और बढ़ाऊंगा। मेरे अजीज़ों, ये दुआ की ताकत है कि मौत ज़िंदगी में बदल जाती है, कायनात का निज़ाम बदल जाता है। हिजकिय्याह ने जब दुआ की और ये साया उसके पास पहुंचा और उसने खुदा से निशान मांगा, तो ये साया ने कहा कि तेरे लिए सूरज साया जो है वो 10 दर्जे आगे को जाए। लेकिन वो एक बाईमान शख्स था, उसे वो जानता था कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो उसने कहा कि नहीं, साया पीछे की तरफ 10 हाथ जाए, सूरज 10 घंटे पीछे चला जाए। और कायनात में ऐसा अब तक मुमकिन नहीं कि किसी की दुआ से कायनात का निज़ाम बदल जाए। वो जो ईमान से दुआ करेगा, वो जो दुआ की ताकत को समझता है, वो जो खुदा की कुदरत को समझता है, और ईमान से वही दुआ करेगा जो जानता है कि रखा बरसा यंथे या खा बरजी, खुदा कादिर मुतलिक है, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और जब अपने खुदा के सामने सरनगू हो जाएगा और अपने ज़िंदा खुदा के सामने ठहर जाएगा, तो उसके लिए कायनात का निज़ाम बदल जाएगा, उसके लिए खुदा का इरादा बदल जाएगा और उसकी बीमारी शिफा में बदल जाएगी। हालेलुया। हिजकिय्याह ना सिर्फ अपनी बीमारी से उसने शिफा पाई बल्कि उसने उम्र की दराजी पाई, और उसके साथ रब्बी अंथे बरस से उसने कायनात के निज़ाम को बदल डाला। लिखा है कि सूरज 10 घंटे साया ढल चुका था। और ज़बूर नवीस कहता है, दाऊद जो खुदा का बंदा, दाऊद जो खुदा से प्यार करने वाला शख्स है, दाऊद जो मर्द दुआ है, दाऊद जो खुदा के दिल के मुआफिक है, दाऊद जिसका काम हर वक्त वर्शिप करना और खुदा के हजूर में खड़े रहना, जो कहता है कि मैं खुदा के घर में दरबान होना पसंद करूँगा। इस कदर वह खुदा से मोहब्बत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी उसके खुदा के साथ है, उसकी बढ़ोतरी उसके खुदा के साथ है। और वो ज़बूर 91 में क्या कहता है, आइए मैं ये बात आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर ज़बूर 91, ज़बूर 91, ज़बूर 91, उसकी 15वीं और 16वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगी। आप इसे मेरे साथ पढ़िए और देखिए कि दुआ करने वाले लोग किस तरह की बरकत पाते हैं और कैसा बिलीव रखते हैं। दाऊद नबी क्या कह रहा है इनके बारे में? वो कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। किसको जवाब देगा? जो पुकारेगा। और हम पुकारते कैसे हैं? हम दुआ के ज़रिए पुकारते हैं। हम अपनी फरियादें खुदा के सामने कैसे रखते
करते हैं? हम अपनी ख्वाहिशात अपने खुदा के सामने कैसे रखते हैं? दुआ के ज़रिए से। और कलाम कहता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसी के साथ रहूँगा, मैं उसे तनहा ना छोड़ूंगा, चाहे वो काल हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, लेकिन मैं दुआ करने वाले शख्स के साथ, पुकारने वाले शख्स के साथ मैं रहूँगा, हर वक्त रहूँगा। और लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। हालेलुया। और हिजकिय्याह को खुदा ने क्या किया? ना सिर्फ शिफा दी बल्कि उम्र की दराजी दे दी। वो तो सिर्फ खुदा से ज़िंदगी मांग रहा था और उसने खुदा के सामने कोई मियाद नहीं ठहराई थी, लेकिन यह खुदा की मोहब्बत है कि उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने उसको 15 बरस और ज़िंदगी अता की। और दाऊद नबी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। किसको आसूदा करूँगा? जो मुझे पुकारेगा, जो मुसीबत में मुझे पुकारेगा, जैसे हिजकिय्याह ने मुसीबत में अपने खुदावंद को पुकारा। तो मेरे अजीज़ों, वो दुआ जब हम ईमान से करें, जब हम दुआ में ठहर जाएं, तो हमारे लिए कायनात का निज़ाम बदल सकता है, हमारे लिए खुदा का इरादा बदल सकता है, हम बीमारियों से शिफा में आ सकते हैं। हालेलुया। आइए तीसरी बात जो रूहुल कुद्स हमें दुआ के तवस्सुत से सिखाना चाह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रूहुल कुद्स हमें सिखा चुका है कि दुआ एक ईमानदार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जिस तरह से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर आप एक बंद कमरे में 5 से 10 मिनट बगैर हवा के बैठें तो आप घुटन महसूस करेंगे। इसी तरह से दुआ एक ईमानदार की ज़िंदगी में काम करती है। आइए दुआ के हवाले से तीसरी चीज़ जो रूहुल कुद्स हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि दुआ हमारे अंदर मायूसियों को ख़त्म करती है। अगर हम डिसहार्ट हो चुके हैं, अगर हम टूट चुके हैं, अगर हम थक चुके हैं, अगर हम हालातों से परेशान हो चुके हैं, अगर लोगों ने आपके ऊपर तरह तरह के लेबल्स लगा दिए हैं, तो आइए एक ईमानदार को मैं जानती हूँ कि जिसने दुआ की तो वो लेबल जो उसके ऊपर पैदाइशी से लग चुका था, वो लेबल जो पैदा होते ही उसकी माँ ने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया था, वो अपनी दुआ के वसीला से और अपने खुदावंद की कुदरत के वसीला से कैसे उस लेबल से बाहर आता है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए पुराने अहदनामा में से तवारीख की पहली किताब, उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ूंगी। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। आमीन। हालेलुया। और खुदा हर किसी को बख्शता है जो ईमान से मांगता है। मेरे अजीज़ों, यबीस के नाम का मतलब है गम देने वाला, गम को बढ़ाने वाला, दुख देने वाला। क्योंकि यबीस की पैदाइश के वक्त इसकी वालिदा को, इसकी मदर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत सारे क्राइसिस थे प्रेगनेंसी में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई, तकलीफ़ दे उनके लिए ये अमल हो गया। तो जैसे यबीस की पैदाइश हुई तो इसकी माँ ने इसका नाम यबीस ये कह के रख दिया कि इसने मेरे गम को बढ़ाया। अब वो उसके ऊपर एक लेबल लग चुका है। अब यबीस जितनी बार अपने नाम को सुनता होगा दूसरों के मुंह से तो उसके जहन में हर वक्त ये एक लेबल उसके जहन में अपने ऊपर लग चुका था कि मैं अपनी माँ के दर्द को बढ़ाने वाला हूँ, मैं अपनी माँ के लिए तकलीफ़ का सबब रहा हूँ। और दूसरे लोग भी, अगर आप गौर करें, दूसरे लोग भी उस पर निगाह करते होंगे और बहुत सारे उसको तंग भी करते होंगे, बहुत सारे उसको तरह तरह के नाम देते होंगे। एक मायूसी का लेबल, एक तकलीफ़ का लेबल, गम देने वाला एक लेबल जिसके ऊपर लग चुका था। यबीस उस लेबल में नहीं रहा, बल्कि यबीस ने क्या किया? यबीस ने अपने आप को टर्न कर लिया, अपना रुख अपने ज़िंदा खुदा की तरफ मोड़ लिया और दुआ में ठहर गया। रूहुल कुद्स जो बात आज हमें सिखाना चाहता है कि अगर यबीस इस मायूसी में ही रह जाता, इस तकलीफ़ में ही रह जाता, इस गम में ही रह जाता, तो आज किताब हयात में, आज कलाम मुक़द्दस में, आज इलाही कलाम में यबीस की दुआ ना होती, यबीस का जिक्र ना होता। यबीस का जिक्र सिर्फ क्यों आया? क्योंकि इसने अपना रुख अपने ज़िंदा खुदा की तरफ किया। अगर आज हम मायूस हैं, अगर आज हम परेशान हैं, हम अपने हालातों की वजह से, हम पे तरह तरह के लेबल लग चुके हैं, हम पे तरह तरह की तोहमतें लग चुकी हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लग चुके हैं, अगर आज हम थक चुके हैं हालातों से, अगर हम थक चुके हैं इर्द गिर्द के माहौल से, अगर हम थक चुके हैं पेन से, मुश्किलात से, तो रूहुल कुद्स चाहता है कि दुआ में खड़े हो जाएं।
यबीस की तरह दुआ में खड़े हो जाए। जैसे यबीस दुआ में ठहर गया, यबीस खड़ा हो गया, यबीस ने अपने आप को मायूसियों से निकाला और जब उसने दुआ की तो आगे अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि यबीस अपने भाइयों में मोजिज़ जाना जाता था। ये दुआ करने वाले शख्स की ताकत है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, दुआ हमें मौत से ज़िंदगी में लाती है, दुआ हमें लानत से बरकत में लाती है, दुआ हमें बीमारियों से शिफा में लाती है। और सबसे बढ़कर ये कि जब एक ईमानदार, वो शख्स जो खुदा को नहीं भी जानता, जब वो दुआ में ठहर जाता है, जब अपने ज़िंदा खुदा से बात करना शुरू करता है, तो वो अपने खुदावंद से मुलाकात करता है, वो अपने खुदावंद से बात करता है, वो अपने खुदावंद की कुर्बत को हासिल करता है, वो अपने खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करता है। वो जान जाता है कि ज़िंदा खुदा किस तरह से उसकी ज़िंदगी में काम करता है। दुआ करने वाले शख्स ऐसे होते हैं जैसे पतरस रसूल। अगर आप देखें, पतरस रसूल के रुमाल से लोग शिफा पा ले जाते। दुआ करने वाले शख्स ऐसे होते हैं कि जो अंधों की आंखें खोलने का सबब बनते हैं। दुआ करने वाले शख्स ऐसे होते हैं जो मायूसियों से ज़िंदगी में लाने वाले होते हैं। दुआ करने वाले शख्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए मशले राह बन जाते हैं, ताकि बहुते लोग जिस वक्त अंधेरों में हैं, जब उनके लिए दुआ में ठहर जाते हैं तो वो उनके लिए एक मशले राह, उनके लिए एक उम्मीद बन जाते हैं। मेरे जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक रास्तबाज की दुआ से पूरा शहर बच सकता है। तो आज हमारे घराने क्यों नहीं बच सकते? अगर आज घर में एक ईमानदार खड़ा हो जाए, एक शख्स खड़ा हो जाए अपने घराने के लिए, अपनी औलाद के लिए, अगर बीवी अपने साथी के लिए, अगर शोहर अपनी बीवी के लिए, अगर माँ अपने बच्चों के लिए, अगर माँ अपने पूरे घराने के लिए खड़ी हो जाए, तो क्या वो अपने घर को नहीं बदल सकती? क्या वो अपने घर की मौत को ज़िंदगी में बदल नहीं सकती? क्या वो अपने घर की बीमारियों को शिफा में बदल नहीं सकती? क्या वो कायनात के निज़ाम को बदल नहीं सकती? क्या वो अपने लिए नामुमकिनात को मुमकिन नहीं कर सकती? क्या वो आसमान जो रहमतों और बरकतों का उनके लिए बंद हो चुका है, क्या वो खोल नहीं सकती? अगर कलीसिया का एक मेंबर खड़ा हो जाए अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, तो क्या वो अपने कलीसिया और अपने चर्च के हालात को बदल नहीं सकता? अगर मसीही कौम आज खड़ी हो जाए, नौजवान खड़े हो जाए आज अपनी कौम के लिए, तो क्या हमारी कौम बदल नहीं सकती? मेरे अज़ीज़ों, दुआ में बहुत ताकत है। फ़क्त हमें जानने की ज़रूरत है। दुआ से नामुमकिनात मुमकिन होते हैं, फ़क्त जानने की ज़रूरत है। दुआ से हम हर एक चीज़ पे इख्तियार पा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ जब उसके शागिर्द थे, तो एक आदमी जब उनके पास एक बुजुर्ग गिरफ्तार लड़की को ले आए, तो जब शागिर्द ना निकाल सके तो उसने जाके मसीह यीशु को बोला कि तेरे शागिर्द इसमें से बदरूहों को नहीं निकाल सके। तो लिखा है कि मसीह यीशु ने क्या कहा कि ये जब शागिर्दों ने पूछा कि हम क्यों ना ये निकाल सके बदरूहों को, तो मसीह यीशु का क्या जवाब था? ये किस्म दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। तो हमारी घरानों में कितनी ऐसी बीमारियां, परेशानियां, बदहालियां जो आज बदरूहें बन चुकी हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए दुख और तकलीफ बन चुकी हैं। तो मैं ईमान रखती हूँ कि दुआ के वसीला से आज हमारे घराने, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी कलीसियाएँ, हमारे कौम सब आज़ाद हो सकते हैं। आमीन। आइए इस पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। ये कलाम हम सबों की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत। तो आइए जितने ईमानदार इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आइए हम सब अपने दस्ते दुआ बुलंद करते हैं ताकि खुदावंद के हजूर हम दुआ में ठहर सकें। मेरे अज़ीज़ों, दुआ आज हमारे नामुमकिनात काम मुमकिन करे। वो काम जो आपके रुक चुके हैं, वो काम जो आपके ठहर चुके हैं, वो परेशानियाँ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में मायूसियों को क्रिएट कर दिया है, वो तमाम नेचर्स जो आप समझते हैं तब्दील नहीं हो सकती, आप समझते हैं आपकी औलाद तब्दील नहीं हो सकती, आप समझते हैं आपके घराने तब्दील नहीं हो सकते, तो मेरे अजीज़ों, खुदा तब्दील करने की कुदरत रखता है। आइए आज हम सब दुआ करते हैं ताकि खुदा रखा बारजे यंते फ़ता रबी रुखान अथारा बारजे फ़ता रबी खुदावंद मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से अब आप मैं अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खादमीन के लिए, अपनी कौम के तमाम नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खुदावंद तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करती हूँ और सब मुत्तफिक हो चाहते हैं खुदावंद आज से हमें दुआ या रूह दे ताकि हमें खुदा मसीह यीशु के नाम से खुदावंद दुआ में स्ट्रॉन्ग हो जाए। खुदावंद खुदा तेरे सामने ठहरने वाले हो जाए ताकि वो आसमान जो हमारे लिए बंद हो चुका है मसीह यीशु के नाम से खुदावंद खुदा तेरी बरकत और तेरा जलाल हमारी कौम के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे घरानों और हमारी ख़ानदानों के लिए मसीह यीशु के नाम से खुले और तेरी बरकत
کلمات سے ہر ایک زندگی جلال پائے۔ مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین۔